Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Surya Roshni Limited Q1 FY27 earnings conference call. Before we begin, a brief disclaimer. This conference call may contain forward-looking statements about the company which are based on beliefs, opinions, and expectations of the company as on the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and may involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions at the end of today's presentation. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the conference over to Mr. Raju Bista, Managing Director, for his opening remarks. Thank you, and over to you, sir. Good evening, everyone. I am Raju Bista, Managing Director, Surya Roshni Limited. On behalf of Surya Roshni Limited, I extend a very warm welcome once again to everyone for joining us today. On this call, we are joined by Mr. B.B. Singhal, CFO and Company Secretary, Mr. Gaurav Jain, CEO, Steel Division, Mr. Vasumitra Pandey, CEO, Lighting and Consumer Durable, Mr. Naresh Singhal, Executive Director, Steel, and SJ, our Investor Relations Advisor. I hope everyone had an opportunity to go through the financial results, which were published just almost 1 hour before. Now, moving on to the overall financial performance highlights. In Q1 FY27, our consolidated revenue stood at 2046 crore, up by 28% year-on-year. EBITDA for the quarter at 120 crore. PAT for the quarter stood at 60 crore, up by 77% year-on-year. We remain a zero-debt company with a net cash surplus of about 155 crore as of June 30, 2026. Coming to the Lighting and Consumer Durable, the Lighting and Consumer Durable segment delivered its strongest ever first quarter with revenues of 456 crore at about growth of 15% year-on-year. Growth was broad-based, led by LED bulb, batten, downlighter, alongside continued momentum in appliances and professional lighting. EBITDA for the quarter stood at 36 crore, which is up by 17% year-on-year, with margins improving to 7.9% in Q1 FY26. Even as we pass on an input cost increase of approximately about 7% during the quarter, with minimal impact on profitability. Professional lighting ended the quarter with an order book of approximately 150 crore, providing healthy near-term execution visibility. In wire and cables, we achieved close to our FY26 sales volume within Q1 of FY27 itself, supported by our direct benefit transfer electrician loyalty program, where enrollment have gone up to 36,000 as of today. Our FY26 revenue target for the wire business remained 250 crore, on track with our 3 years guidance of 500 crore rupees. We remain fully on track to deliver our FY27 guidance of about 22%-23% value growth and about 25% of volume growth in lighting. And with the festive seasons now underway, we expect the next 3 quarters to be more strongest, supported by deeper distribution penetration and continued investment in brand building. Now, moving on to the steel pipe and strip segment. The steel pipe segment delivered a strongest start to the year,
Revenues for the quarter stood at rupees 1,590 crore, which is up by 32% year-on-year, with volume growth of around 21% year-on-year to 2.28 lakh tons, achieving its ever highest sale in quarter one. The growth was base led by section pipe, ERW API pipe, supported by a sharp rise in export volumes, following the opening of our US market, spiral cold rolling and GP pipe, even as galvanized pipes remain soft due to continued delay in government fund releases. EBITDA for the quarter stood at about 84 crore, up 63% year-on-year, with EBITDA per ton to 4,006 rupees against 2,922 rupees in Q1 of FY26. The capacity utilization stood approximately 82%. Value-added product contribute 47% of overall volume, and export accounted for 20% of segment volumes. Our order book across trade, export, API and spiral pipe stood at 800 crore, including 78,000 ton of export API orders for the US market. Looking ahead, our strategy for the business rests on three pillars: capacity expansion and depending our value-added product mix and structural cost reduction. Three new DFT mills are being commissioned across Gujarat, Malanpur and Bahadurgarh plant between August and December 2026, and we will continue to add 2 to 3 lakh ton of capacity every year, targeting overall capacity of about 16 lakh ton in FY26 and approximately 2 million ton of capacity by FY29. On cost, our various automation, energy efficiency and replacing old plants initiatives are directed at a per ton cost reduction of about 1,100 rupees, and we are fully committed that in full year of FY27 guidance of 4,600 to 4,700 per ton EBITDA will be achieved. We remain confident that our current global supply chain present a structural long-term opportunity for efficient Indian manufacturers with integrated capabilities, and Surya is exceptionally doing well positioned to capture that upside across both our businesses. Now, I would like to request Mr. B.B. Singhal to share his views. Thank you, respected MD sir, and a very good afternoon to all the participants on the call. For the quarter, the revenue was 2,046 crores as compared to 1,605 crores, a growth of 28% year-on-year basis. EBITDA and PAT stood at rupees 128 crore and 60 crore as compared to 83 crore and 34 crore in Q1 FY26, a growth of 46% and 77% year-on-year basis respectively. In lighting and consumer durables, revenue for the quarter stood at rupees 456 crore as against rupees 397 crore, a growth of 50% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 36 crore and rupees 24 crore as compared to 31 crore and rupees 21 crore in Q1 FY26, a growth of 17% and 12% respectively. In the steel pipe and strip, during the quarter, the revenue was 1,590 crore as compared to 1,207 crore, a growth of 32% year-on-year basis. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 4,006 compared to 2,922 in the same period last year,
a growth of 37% Y-on-Y basis. EBITDA and PBT stood at rupees 84 crore and rupees 57 crore as against 52 crore and rupees 24 crore, a growth of 63% and 134% respectively. In Q1 FY27, our net working capital cycle was 72 days with a return on capital employed of 12.69% and a return of equity of 8.95%. Improved capacity utilization, working capital optimization and cost rationalization enabled us to become a zero debt company and having cash surplus fund of 154 crore as on June 30, 2026. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers. Thank you very much, sir. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. We have our first question from the line of Viraj Mehta from Enigma Investment Partners. Please go ahead. Yeah, hello sir. Congratulations Raju ji for a good performance. Sir, मेरा पहला क्वेश्चन था कि you said we will do 47 to 4800 rupees of EBITDA per ton, but if I look at the first quarter अपना 4000 रुपए EBITDA per ton हुआ है, तो 47-4800 करने के लिए बाकी 3 क्वार्टर में तो अपने को 5000 के ऊपर EBITDA per ton करने पड़ेंगे, तो मतलब कैसे होएगा वो? ठीक है, नहीं, दो चीज़ मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक तो वॉल्यूम को लेकर के और थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। जैसा मैंने लास्ट कॉन कॉल में बात हुई थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2,65,000 टन जो है Q1 में एक्सपेक्टेड है, बट समहाउ 2.3 लाख टन के आसपास हुआ है। थोड़ा उसमें शॉर्टफॉल हुआ है 2-3 कारणों से। एक तो हमारा कुछ वेसल्स के अवेलेबिलिटी के कारण करीब 7,000 टन के आसपास मटेरियल जो है पोर्ट में ही पड़ा रहा, और दूसरा थोड़ा मिडल ईस्ट में जो कुछ भी एक्सटेंडेड ये चल रहा है उसकी वजह से थोड़े मिडल ईस्ट साइड के ऑर्डर कम रहे 8-10 हज़ार टन का, और थोड़ा एपीआई और स्पाइरल में करीब 8-10 हज़ार टन का शॉर्टफॉल था जो एक्सपेक्टेड था Q1 में होगा। उसके कारण थोड़ा वॉल्यूम में कम है, अदरवाइज भी मतलब ग्रोथ जो है ठीक ठाक रही है। और जो नंबर्स हमने 11 लाख टन का बताया था वो बाकी के 3 क्वार्टर में हम उसको पूरा कर लेंगे। Q2, 3 और 4 तीनों जो क्वार्टर मिला करके करीब 22%-23% के आसपास का जो ग्रोथ नंबर था वो हम उसको अचीव कर लेंगे। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी EBITDA का विषय था उसमें भी 2-3 रीजन्स मैं आप सबको ज़रूर बताना चाहूँगा कि EBITDA जो है 4700 रुपये के आसपास एक्सपेक्टेड था। इसमें करीब 700 रुपये टन के आसपास का थोड़ा इम्पेक्ट आया है। मेनली 2 बड़े रीजन्स है और बहुत ही जेन्युइन रीजन्स है। एक तो ओशन फ्रेट के अंदर में लगभग 3800 रुपये पर टन का इम्पेक्ट आया इस क्वार्टर में, और हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट करीब 20% से ऊपर रहा है इस क्वार्टर में, और टोटल वॉल्यूम से अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो करीब 800 रुपये पर टन का इम्पेक्ट जो है EBITDA में ओनली बिकॉज ऑफ ओशन फ्रेट उसका इम्पेक्ट आया है। सिमिलरली कुछ इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है, मेनली उस कोटिंग मटेरियल में गैस और ORM के अंदर में, उसका भी लगभग करीब जो है 200 रुपये पर टन के आसपास का है। बट साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये ओशन फ्रेट का इम्पेक्ट इस क्वार्टर में पार्टिकुलरली ज़्यादा था। मेनली हमारे पास जो पहले पुराने ऑर्डर बुकिंग था उसकी वजह से। अब ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्डर अभी हाथ में हैं या जो आ रहे हैं तो नए बढ़े हुए फ्रेट में ही हम बुकिंग को ले रहे हैं, तो उसकी वजह से करीब आप मान लीजिए कि 1000 रुपये के आसपास का, और नहीं तो भी 600-700 रुपये का इम्पेक्ट EBITDA में वो साफ दिखता है, जिसको आने वाले समय में
को पूरा करेंगे। और जो मेनली आपका जो कंसर्न था कि पूरे साल भर में हम, तो साल भर में 4600 से 4700 रुपये का हमने बताया था पहले, तो करीब 4400 के आसपास, 4400 4500 के आसपास जो है हम सेकंड क्वार्टर में करेंगे। और थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर मिला करके 4600 to 4700 का EBITDA पर टन जो है मतलब पूरे साल का रहेगा। और जितना प्रॉफिटेबिलिटी हमने लाइटिंग और स्टील का मिला करके आपको हमने लास्ट कॉल में कहा था, उसको हम अचीव कर लेंगे। वी आर फुल्ली कॉन्फिडेंट। श्योर सर, आप थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। सर सेकंड क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि अपना मई और जून में काफ़ी अप्रैल में और जून में स्टील के काफ़ी प्राइसेस करेक्ट हुए, तो कितना इन्वेंट्री लॉस हुआ होगा अपना इस क्वार्टर रफली? नहीं मतलब अप्रैल में, पार्टिकुलरली अप्रैल 26 के अंदर में 3 से 4 हज़ार रुपये का प्राइस इंक्रीज था। मई जून में मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल पूरे क्वार्टर में मतलब एट पार सही है, उसका कोई मतलब इम्पैक्ट ऐसा मतलब Q1 के अंदर में नहीं है। मोरलेस अभी जा करके मुझे ऐसा लगता है स्टेबल सा है स्टील प्राइस, 1000 रुपया अप एंड डाउन इसी लेवल पे चल रहा है। एंड क्वार्टर 2 में थोड़ा हमको एक बेनिफिट भी होगा, करीब 25 से 1000 टन का जो है वेसल्स ऑलरेडी जो है पोर्ट में आ गए हैं। और इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेड मटेरियल आ रहा है उसमें काफ़ी प्राइस रीजनेबली ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक। Right, sir. Sure, sir. I don't have any more questions. I'll come back in the queue. Thank you. We have our next question from the line of Kiran from Table Tree Capital. Please go ahead. Sir, thank you for the opportunity. Sir, couple of questions. Sir, हमने जो so first thing on order book within the steel segment. So we had an order book of in March, as of March ending 1,000 crore given in the presentation. Now in this quarter we are saying in spite of all these increase in exports and everything else, our order book is 800 crore. So there's an order book decrease of 200 crore. I mean, should I assume that this 800 crore has a higher proportion of exports, higher proportion of exports, and therefore we'll continue to do better margins because order book इतना मतलब 20% गिर गया सर, इसलिए थोड़ा पूछना था मुझे। नहीं, वो इसको आप इस तरह से देख सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो पहले ऑर्डर बुक था वो तो निकल गया। अब जो फ्रेश ऑर्डर बुक है इसके अंदर में बढ़े हुए फ्रेट में आप देखिए ना, एक्सपोर्ट के अंदर में 3800 रुपया पर टन का इम्पैक्ट आता है। तो एक बहुत अच्छा खासा जो है इंक्रीज है प्रोडक्ट में। और सिमिलरली थोड़ा मिडल ईस्ट के कारण, कुछ मिडल ईस्ट में रेगुलर बेसिस पे हम लोग करीब जो है 15 से 20 हज़ार टन क्वार्टरली करते थे, तो वो ऑलमोस्ट 130 मटेरियल जा पा रहा है अभी। और एपीआई के भी ऑर्डर जिस फ्लो में रहने चाहिए थे वो नहीं है, उसमें भी ऑलमोस्ट जो है 50% की डी ग्रोथ है। ये 3 रीजन से है, बट एक नंबर्स लाइटिंग स्टील मिला के 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और हमारे बिजनेस के अंदर में 800, 1000, 1200 करोड़ का ही रेगुलर बेसिस पे रहता है। और मोरलेस हमारे ये सारे जो है बिजनेसेस बड़े फिक्स हैं, मतलब प्रोजेक्ट के कारण कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। अदरवाइज मोरलेस आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ जो डोमेस्टिक जो ट्रेड कंज्यूमर बिजनेस है उसके थ्रू करीब 53% के आसपास की हमारी सेल रहती है, और 20% के आसपास का जो है एक्सपोर्ट हमारा कंट्रीब्यूट करता है। कोल्ड रोलिंग सेगमेंट छोटा है तो उसमें करीब 10% के आसपास रहता है, और गवर्नमेंट और एक्चुअल यूजर का जो है वो करीब 15% का कंट्रीब्यूशन रहता है। सो मोरलेस मतलब ऑलमोस्ट 75 to 80% हमारा बिजनेस फिक्स जैसा ही, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट टाइप में ही रहता है। तो एक पॉजिटिव हमारे बिजनेस साइकिल में एक ये भी है। सो इसका बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपको नहीं आएगा, मतलब 20% भले ही 8000 की जगह 800 दिखता हो,
और ये इमीडिएटली 1000-1200 भी हो जाएगा, उसका बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब क्वार्टर के वॉल्यूम में इम्पैक्ट नहीं आएगा। समझा सर। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सॉरी सर, मेरा हिंदी थोड़ा खराब है तो प्लीज एक्सक्यूज, बट मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस से मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये ज़्यादातर जीआई पाइप है या एपीआई एंड स्पाइरल पाइप है? द रीजन आई एम आस्किंग सर इज बिकॉज एपीआई स्पाइरल पाइप जो हमारा हाईएस्ट एबिटा पर टन था वो काफ़ी गिर गया FY26 में, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा ज़्यादातर एक्सपोर्ट जो हम लोग यूएस को बोल रहे हैं 78,000 टन एंड एवरीथिंग, इज इट जीआई पाइप्स और एपीआई एंड स्पाइरल पाइप्स? नहीं, ये ERW API पाइप है। ये एक नया मार्केट हमारे मतलब उसमें किटी में ऐड हुआ है और इसके अंदर में भी एबिटा पर टन अच्छा है। मतलब इस क्वार्टर में करीब 70 to 100 ही था, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट वेसल्स की वजह से। और बट लॉन्ग टर्म के लिए जो है ब्रेकबल का जो है मतलब टाई अप भी हो गया है, पार्टिकुलरली फॉर द यूएस मार्केट, जहाँ एक साथ ही बड़ी वॉल्यूम मतलब जाती है। सो आने वाले क्वार्टर में इसमें EBITDA में और इम्प्रूवमेंट आएगा और जो है ब्रेकबल की होने की वजह से जो है वेसल्स में जो इंक्रीज का इम्पैक्ट है वो भी थोड़ा कम रहेगा। सो ये मेनली जो जा रहा है यूएस मार्केट को वो API ERW पाइप है, नॉट स्पाइरल। नॉट फाइन, गॉट इट सर। लास्ट क्वेश्चन मेरा इन टर्म्स ऑफ ये जो यूएस अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटी है जो नया प्रोडक्ट के वजह से खुला है, एंड प्रीवियसली ऑल्सो यूज्ड टू एक्सपोर्ट लिटिल बट नाउ तो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट लाइक यू जस्ट सेड ERW API। सो हम लोग FY27 में यूएस फोकस रेवेन्यू या जस्ट जनरल एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितना कर सकते हैं सर? एंड FY28 कितना कैसे ग्रोथ देख रहे हो आप, especially in the API business because EBITDA per ton is much higher. So it will be very good to paint a picture for us to say अच्छा exports में इतना सब growth आ रहा है and all this export growth will come at a higher EBITDA per ton. सी दो तीन चीज़ें जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरे साल में जैसे 11 लाख टन का जो हमारा वॉल्यूम है, अभी 2.3 लाख टन हुआ है, तो Q2 में 2.6 लाख टन के आसपास करेंगे, Q3 में 2.8 to 2.9 लाख टन और Q4 में 3.2 के आसपास करेंगे। तो 11 लाख टन वॉल्यूम में हमें कोई सच इश्यूज नहीं दिखता और यूटिलाइजेशन भी ऑलमोस्ट 82% प्लस के आसपास ही चल रहा है सारी पांचों फैक्ट्रियों के अंदर में। सो दैट इज़ वन। साइमल्टेनियसली मैंने जब शुरू के रिमार्क्स में बताया कि हमारा ज़्यादा थ्रस्ट अभी भी इसमें है कि हम ज़्यादा मार्जिन्स वाले हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट पे ही हमारा फोकस रहे। सो ग्रेजुअली आप देखेंगे 40-42% से बढ़ते बढ़ते अब वो 47% के आसपास हो गया है। और थोड़ा मिडल ईस्ट में करेक्शन होने के बाद और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मार्केट भी ग्रो कर रहा है, कुछ मलेशिया, कुछ नए कंट्री भी पाइपलाइन में हो रहे हैं। सो मुझे लगता है यूएस का हमारा करीब करीब जो है 8 से 10% के आसपास शेयर रहेगा। तो ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 20% की बजाय बढ़ के 25% हो जाएगा। अच्छा, तो 20% था FY26 में, अभी 25% होगा। इज दैट द राइट अंडरस्टैंडिंग? FY26 it was about 15-16%, precisely 17%. Now the FY27 it has increased to 20%. So gradually it will go up to like about 25% of total steel segment business. Yeah. Perfect. Thank you so much. I'll get back in the queue. Thank you. We have our next question from the line of Love Gupta from Counter Cyclical Investments. Please go ahead. सर लास्ट कॉल में आपने बोला था कि अभी न्यू रूल्स के अंडर आप कंसिडर करेंगे बायबैक, तो उस पर कोई अपडेट है? नहीं, उस पर चल रहा है। होपफुली बहुत जल्दी मतलब उस पर कुछ न कुछ निर्णय हम करेंगे। बट एज सच मेरे पास आज कोई मटेरियल नहीं है
डिस्क्लोज करने के लिए, बट उस पर हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि अब उसके अंदर में जो पहले डबल टैक्सेशन वाला एंगल था वो भी ठीक हो गया है सरकार की तरफ से। तो उसके अंदर में जो है हम करेंगे, और थोड़ा इस पार्टिकुलरली कुछ 2-3 क्वार्टर के अंदर में थोड़ा ये महंगाई बढ़ने के कारण या स्टील में उतार चढ़ाव के कारण थोड़ी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ी हुई है, उसमें पैसा काफ़ी लगा हुआ है, बट वेरी सुन मतलब हम लोग कुछ न कुछ कॉर्पोरेट एक्शन जो भी करेंगे आपको जल्दी बताएंगे। और सेकंड सर, डीमर्जर पे भी कोई अपडेट है? सो ये भी वही कॉर्पोरेट एक्शन की बात हो गई। अब देखते हैं बोर्ड किस पे सहमति बनाती है, मतलब बाईबैक पे या डीमर्जर पे, बट एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मैं कहता हूँ कि दोनों बिजनेस स्टैंड अलोन अच्छा कर रहे हैं, इवन लाइटिंग कंज्यूमर भी और स्टील सेगमेंट भी। सो मुझे लगता है ये अप्रोप्रिएट टाइम है, थोड़ा मतलब माइक्रो तो ठीक ही लगता है, थोड़ा ये मैक्रो सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए, तो मुझे लगता है ये राइट टाइम है। मैं आपके कंसर्न जरूर जो है मैनेजमेंट तक और बोर्ड तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच। Thank you. We have our next question from the line of Pranav from Rare Enterprises. Please go ahead. Hi, sir. Thanks a lot for the opportunity. Hi. Sir, in last quarter, you had said that you will come to a decision by next board meeting on demerger. And and also second thing is what in macro and micro actually is like, because two businesses have completely different cycles, different macro and different micro. So why we take this reason as a reason to delay demerger or buyback, just for my clarity. नहीं, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो दोनों बिजनेस जैसा मैंने बताया स्टैंड अलोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और लाइटिंग के अंदर में भी वायर और अप्लायंसेस ये सब ऐड किया है, स्टील पाइप के अंदर में भी कुछ इन्वेस्टमेंट फर्दर हमने किया है, तो मतलब वो एक उसी रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और ग्लोबली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वो तो अनसर्टिनिटी है ही, इसमें तो आज कुछ होता है फिर 3 दिन बाद कुछ और होता है, तो ये सब सीन है। ये सबको देखते हुए और कभी भी जो है ऐसा लगेगा कि ये राइट टाइम है, और मेरा फिर एक ही बात कहना है, हमारे पास डेट तो है नहीं, बैंकों को जो सर्विस जितनी साल तक सेवा करनी चाहिए थी वो कर ली, और एम्प्लॉय को टाइमली 5 तारीख तक तनख्वाह सबको मिल जाती है। सो कंपनी में सब शेयर होल्डर का पैसा है, अब जो कुछ भी कंपनी का धन है वो शेयर होल्डर का ही है, और वो उन्हीं पे जाएगा। Correct, sir. So that's why, because whenever I study this company, I feel that regulatory-wise or bank-wise or anything, there is no theoretical thing stopping demerger. Unless and until मैं भी ये मानता हूँ, कोई लॉजिक नहीं है डीमर्जर नहीं करना। Correct. I strongly believe. सर और एक चीज था कि जैसे आपने बोला कि 7,200 रियलाइजेशन यू आल्सो गॉट फॉर दिस क्वार्टर एक्सपोर्ट्स, बट द मोस्ट ऑफ द EBITDA increase were eaten away by tariff increase. So going forward, you think that the tariffs have normalized, or the pricing will take care of this EBITDA erosion that has happened, EBITDA per erosion that has happened? नहीं, वो जैसे क्या होता है कि जो ऑर्डर बुक रहता है पहले का वो तो उसी प्राइस में जाता है। अब जो भी नए ऑर्डर हैं, इवन जो ऑर्डर इन हैंड है, बुकड है, वो भी अब नए फ्रेट इंक्लूड करके ही हम ऑर्डर ले रहे हैं, और इसीलिए भी थोड़ा स्लाइटली आप देखेंगे 1000 की जगह 800 करोड़ का जो है हमारे पास ऑर्डर बुक है। तो वो उसका मतलब ये जैसे 3800 रुपये पर टन एक्सपोर्ट के टोटल वॉल्यूम के अंदर में जो इम्पेक्ट था, खैर डिफरेंट कंट्री एज डिफरेंट टेरिफ, तो उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले क्वार्टर में मतलब वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ। Understood, sir. So last question from my side. You had guided that export versus say 1.26, 1.3 lakh ton last year would be 2.4 or 2.5 lakh ton this year.
So, and that will help obviously the EBITDA per ton for our company. So does that volume outlook remain same? So 10,000 ton per month US market that had opened for us. Does this continue? So overall, as far as US market is concerned, we'll be doing like 1,20,000 to 1,25,000 ton of business during this entire FY27. Right. So total export will be upwards of 2 point something, 2.2, 2.3. Yeah. The contribution of US market probably will be around 10 to 11%. So I think we'll be doing around 3 lakh ton of export. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you. We have our next question from the line of Shantanu Basu from Smith Limited. Please go ahead. Hello. Yes, Shantanu. Am I audible? Yes. Hi. So, sir, my first question is with regard to the Middle East situation. If you could just explain or give us some clarity with regard to how the Middle East situation is shaping up and how would we see it shaping up during the next few quarters. That is one. And the second question is, when I'm looking at slide 18 of your presentation, I'm seeing that the API and spiral pipe EBITDA per metric ton dropped very significantly in FY25-26 to 5,600 rupees compared to 9,136 in FY22. Then, of course, it went up to 12,000, 10,000. So what was the reason for this sharp drop, and how do you see it, and what is the figure in Q1 FY27, and how do you see the figure to improve in the coming quarters? That's all, sir. सी एक तो देखिए जो मिडल ईस्ट का आपने बताया $300 से $4200 रुपीस हो गया फ्रेट, तो वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है, और सिचुएशन जो है वो कैसे आगे इवॉल्व करेगा बहुत प्रिसाइजली कहना भी बहुत मुश्किल है, और ना तो भारत हमारे देश के हाथ में है, और वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है ना किसी के कंट्रोल में है। और दूसरा जो आपने बताया कि ये स्पाइरल के अंदर में इसमें क्या है कि मतलब कई बार एपीआई स्पाइरल रहता है तो उसमें अच्छे प्राइस मिलते हैं, वाटर पाइप में थोड़ा कम मिलते हैं, तो वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से जो है उसका इम्पैक्ट इसमें आता है। सो एज सच जनरली स्पाइरल के अंदर में जो एपीआई स्पाइरल रहते हैं उसमें मार्जिन्स हायर साइड पे रहते हैं, और वाटर पाइप का सेगमेंट रहता है तो उसमें थोड़े से कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। सर Q1 FY27 में कितना था ये? हेलो, एक मिनट है। Q1 so it was 3,420 rupees per ton. 3,420 rupees. Yeah. Okay. So इसमें थोड़ा सा जो कोटिंग मटेरियल का इम्पैक्ट इसमें अच्छा खासा है, मतलब इस स्पाइरल में। ओके सर, और मतलब बाकी 3 क्वार्टर में कैसे देखते हो इस फिगर को? तो ये मतलब ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा, क्योंकि अब नए ऑर्डर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले साल 5600-5700 रुपये पर टन के आसपास था, मुझे लगता है 5000 रुपये तक हम इसको लेके जाएंगे फॉर द फुल ईयर। या ओके, ठीक है सर। Thank you. We have our next question from the line of Resham Jain from VVD Asset Managers. Please go ahead. Hi sir, good evening. Congratulations on good set of volume growth. सर मेरे 3 सवाल हैं। पहला ये है कि जनरली एपीआई पाइप्स इंडिया का जो टेंडर्स वगैरह रहते हैं वो काफ़ी स्लो थे लास्ट 1 साल से, बट अभी दिख रहा है कि काफ़ी सारे नए टेंडर्स फ्लोट हो रहे हैं, तो उस पर कुछ आपका व्यू रहेगा फॉर सेकेंड हाफ?
सो रेस्ट बाकी 2 क्वेश्चन आप एक साथ ही पूछ लीजिए। सर दूसरा ये था कि हमारा जो कैपेसिटी एक्सपांशन हम जो प्लान कर रहे हैं, ऑलरेडी हम 16 लाख टन पे है आई थिंक, और आपने बोला 2-3 लाख टन हर साल ऐड करेंगे, और वो कहाँ पे करेंगे? साउथ में, ईस्ट में, जहाँ पे आपका कैपेसिटी थोड़ा कम है, क्या हम वहाँ पे करेंगे क्या? और तीसरा सवाल ये है, आपने बताया कि जो पहले गाइड किया था उतना ही EBITDA हम करेंगे FY27 में, तो आपने लास्ट टाइम 700 करोड़ का EBITDA का गाइडेंस दिया था FY27 के लिए। तो ये 3 सवाल है सर। सो पहला तो आपने बताया कि ये जो API टेंडर जो बिजनेस है वो अभी टेंडर आ रहे हैं, यू आर वेरी मच करेक्ट, और उसमें हम पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, बट उसको मेटेरियलाइज होने में वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। सो दैट इज़ वन। दूसरा जो जहाँ तक कैपेसिटी, अभी हम 14 लाख टन हमारी कैपेसिटी है। सो इस साल के एंड तक जो है हमारे ये तीनों फैक्ट्री के अंदर में एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा, मिल कमीशन पे आ जाएगी तो 16 लाख टन हो जाएगा, और FY28-29 में जा कर के 2 मिलियन होगा ये कैपेसिटी का बारे में। और जहाँ तक ओवरऑल जो है आपने EBITDA की बात की, सो पूरे मतलब जैसे Q1 में 120 करोड़ का EBITDA हमारा था, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q2 के अंदर में 150 करोड़ और नंबर्स के आसपास, सो फॉलोड बाय 400 करोड़ का हमारा टारगेट है फॉर द रेस्ट H2। सो ऑलमोस्ट 670 to 680 के आसपास जो है EBITDA पूरे साल का रहेगा, और करीब करीब 9,400-9,500 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू टर्नओवर रहेगा जी। ओके सर, खाली ये समझना था कैपेसिटी आपका कहाँ एक्सपांड करेंगे इंक्रीमेंटली? सो अभी तो मतलब गुजरात में भी किया है, और ग्वालियर प्लांट में भी, और साउथ में भी, और नेक्स्ट जो हमारी कैपेसिटी है वो हम लोग साउथ में कर रहे हैं, और ऑलरेडी हिंदूपुर के अंदर में 10 एकड़ 10 एकड़ एडिशनल लैंड हमने ऑलरेडी लिया है, और करीब करीब 15,000 टन का एक सेटअप वहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी पहली मिल की कमीशनिंग भी जो है जनवरी 27 में, मतलब आज से 6 महीने बाद पहला काम मिल का मतलब कमीशनिंग हो जाएगी, और टोटल 4 मिल का ये प्लांट रहेगा, और करीब 60 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये जो एडिशनल लैंड लिया बस एडजेसेंट ही है, जो अभी हमारी करंट पे फैक्ट्री है हिंदूपुर में, तो उसके बगल में ही है, तो करीब 3 लाख टन की जो है हमारी कैपेसिटी यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। ओके, थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask any questions, you may press star and one on your touchtone phone. Anyone who wishes to ask a question may press star and one. Next question is from the line of Viraj Mehta from Enigma Investment Partners. Please go ahead. Yeah, hello sir. Sir, my just couple of clarification. You said 680 crore EBITDA for the full year. That means 150 crore in the second quarter. Is that correct? जी 150-160 crore in the second quarter. हेलो या राइट। एंड सर, ये जो फ्रेट का अपना इशू है एक्सपोर्ट में, सो आर एनी ऑफ दोज ऑर्डर्स, अपने को ये इशू हैज दैट कंटिन्यूड इवन इन द सेकंड क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ कि जुलाई तो अभी खत्म हो गया, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि जुलाई में भी मार्जिन हिट है ये फ्रेट के कारण? नहीं विराज भाई, मतलब जुलाई में बहुत कम है, और अगले 2 महीने में बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो कुछ भी फ्रेश ऑर्डर आ रहे हैं वो बढ़े हुए प्राइस पे आ रहे हैं। वी आर टेकिंग ऑल इम्पैक्ट ऑफ ये जो फ्रेट का, वेसल्स का जो भी आ रहा है, एंड वी आर फाइंडिंग अदर मेथड ऑल्सो कि जैसे यूएस के लिए ब्रेकबल इजीली वो पॉसिबल था, उसको कर लिया, तो उसमें उसका बहुत नॉमिनल सा इम्पैक्ट है। सो वो थोड़ा टाइम लगा, बट उसका इम्पैक्ट अभी Q2-3 में नहीं आएगा।
Right, sir. और sir, last two question. One, sir, what is the, because we have had spillover, sir, first quarter से second quarter में भी spillover आया है, because आपने बोला पोर्ट पे 8-10 हज़ार टन रह गया था, तो सर Q2 में आपके हिसाब से कितना वॉल्यूम कर लेंगे? जुलाई ऑलरेडी हो चुका है, so I'm sure there is some rough sense you have. इसीलिए जो है Q2 का जो है हमने गाइडेंस जो है बढ़ा करके दिया है, उसका इम्पैक्ट Q2 के अंदर में रिफ्लेक्ट करेगा। नहीं, सो एब्सोल्यूट अमाउंट वो कितना होएगा सर? 2.7, 2.6, 2.7, 2.8 कितना करेंगे सर? 2.6 मिनिमम। 2.6 to 2.6 या। Okay sir. Thank you so much. Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask any question, you may press star and one. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on the touchtone phone. Next question is from the line of Raj Mehta from Raj Mehta Associates. Go ahead. सर, पहले तो मुझे ये चीज़ पूछनी थी कि लास्ट 4 साल से अपना सेल्स ग्रोथ और जो EPS ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। हमारा कंपनी में हम लोग ने कैपेक्स भी अभी कंप्लीट कर रहे हैं, बट जो कॉम्पिटिटर्स है उनका भी जैसे फेस किया था ये क्वार्टर में, ऐसे APL अपोलो ने भी सेम चीज़ फेस की थी, बट उनका उन्होंने मार्जिन बढ़ाया भी है इनफैक्ट, और वो मार्केट शेयर अभी भी गेन कर ही रहे हैं। तो आप एक्सपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा फोकस करके आप थोड़ा मार्केट कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे आपका व्यू जानना था कि डोमेस्टिकली आपका ये मार्जिन प्रेशर जो आपको फेस हो रहा है वो कंपटीशन के साथ साथ आपको भी थोड़ा वॉल्यूम नहीं मिल रहा है तो आपको भी थोड़ा मार्जिन स्क्वीज करके माल बेचना पड़ रहा है, कि कैसा है सिचुएशन ऑन ग्राउंड पे? नहीं, थोड़ा सब कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है। और जहाँ तक मैं अगर पीएस की बात करूँ, देखिए हमारी वॉल्यूम के अंदर में करीब 32% की ग्रोथ है, और 21% की ग्रोथ है। वैल्यू टर्म्स में जो है 32% की ग्रोथ है। और बाकी जो है मैं पीएस की भी बात करूँ, जिस कंपनी का आपने नाम लिया उनका 8% का ग्रोथ है। अगर मैं जिंदल शो की बात करूँ 13% है, रत्नामिनी -16% है। सो अलग अलग है, और ये क्वार्टर टू क्वार्टर डिपेंड भी करता है कि मतलब किस तरह का जो है प्रोडक्ट मिक्स आप करते हो। सो मतलब हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ पे हम काम कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में, जैसे मैंने लास्ट कॉल में बताया था, ये साल ग्रोथ का साल रहेगा सूर्य रोशनी के केस में। और अभी तक स्टील की हमने बात की, और लाइटिंग के अंदर में भी इतना टफ है ओवरऑल, उसके बावजूद भी हमने Q1 के अंदर में 15% की ग्रोथ की है, और ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। इवन लाइटिंग में भी हम 20%, 19 से 20% का जो है वैल्यू टर्म्स में हम लोग ग्रोथ करेंगे, और स्टील के अंदर में भी जो है वॉल्यूम में 20%, 22% की ग्रोथ रहेगी, और वैल्यू टर्म्स में 30% से प्लस की ग्रोथ रहेगी। सर, ये तो ग्रोथ आपका इसके वजह से आ रहा है बिकॉज लास्ट ईयर जब आपका जून क्वार्टर था तब आपको सैप इम्प्लीमेंटेशन या आपका कुछ अकाउंटिंग की वजह से आपको थोड़े 1-8 महीने का प्रॉब्लम फेस हुआ था, उसके वजह से आपका बेस इफेक्ट बहुत कम है, उसके वजह से आपको ईयर ऑन ईयर बहुत ग्रोथ दिख रहा है। बट मैं जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर में आपका मार्जिन प्रेशर में है, आपका वॉल्यूम जो है, आपका जो सेल्स वैल्यू टर्म्स में है वो भी प्रेशर में है। तो ये एक्सटर्नल रीजंस जो आ रहे हैं वो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स के लिए समझ सकते हैं, बट सर डोमेस्टिक के लिए भी अगर आप स्टील डिवीजन स्पेसिफिकली अगर आप सोच रहे हो कि आगे जाके मुझे इसको डीमर्जर भी करना है, तो अगर आप स्टील डिवीजन में भी देखोगे तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्पैक्ट भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। जब आप कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हो तो आपका ROE ROC भी मिड टीन्स में भी आ रहा है। तो हम एज अ वैल्यू क्रिएटिव कैसे शेयर होल्डर्स को कर पाएंगे, बिकॉज लास्ट 4 साल से अपना स्टैग्नेंट ही हुआ है सर। देखिए, एक तो जो आपने बताया वॉल्यूम का,
जो मतलब पिछले साल का इम्पैक्ट भी उसका पॉजिटिव नोट पे हुआ है, क्योंकि पिछले साल Q1 के अंदर में थोड़ा वॉल्यूम के अंदर में इश्यूज था ये ERP के कारण, आपको बताया भी था हमने। तो उसके बावजूद भी हमारा ये अभी तक का एवर हाईएस्ट Q1 की सेल वॉल्यूम हुई है, नंबर 1। नंबर 2 जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम ऑलरेडी काफ़ी हो गया है पिछले 1-1.5 साल के अंदर में, और इस साल के अंत तक और एडिशनल वॉल्यूम आ रहा है। और मतलब इन सब रीजन की वजह से जो है आने वाले समय में वॉल्यूम में आपको वो ग्रोथ दिखेगा, वो निराशा नहीं होगी। सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं हमारा मिक्स में, तो आपने जैसे बोला 42-43% से 47% पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिक्स आ रहा है। तो ये जब आप 50% तक भी पहुंचोगे तो सर स्टील प्राइसिंग के जो इम्पैक्ट है, जो फ्लक्चुएशन है, तो वो फ्लक्चुएशंस में भी अभी भी 50% अपना आपने जो भी एडिशनली आप जो 3-4% ही इंक्रीज कर रहे हो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो उससे हमारा कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएशन रहेगा ही नंबर्स बेस्ड ऑन दी प्राइसिंग ऑफ दी स्टील। तो हमारा मोटिव क्या है, बिकॉज अगर आप कॉम्पिटिटर्स को भी देखोगे सब लोग यहाँ से शिफ्ट होकर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज़्यादा जा रहे हैं, बिकॉज उनको ये जो फ्लक्चुएशन है वो फ्लक्चुएशन में उनको इन्वेंट्री लॉस गेन का इशू नहीं रखना है। तो ये चीज़ में हम एडिशनली क्या कर रहे हैं कि हमारा विज़न नेक्स्ट 5 साल में ऐसा हो कि हम ये 40-50% जो वैल्यू एडेड है उसको 60-70-80% तक पहुंचाना है। देखिए, हमारा एक सबसे ज़्यादा हमको जहाँ इम्पेक्ट आता है ना, वो आता है हमारी मैन पावर पर टन कॉस्ट के ऊपर में, उस पर काम कर रहे हैं। और हमारी जो कॉस्ट है लगभग जो है 20% से हम रिड्यूस करेंगे अगले 1 साल में, दैट इज़ 1। और नंबर 2 देखिए, जहाँ तक स्टील का फ्लक्चुएशन का है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और आज तक 50 साल हमको भी पाइप बेचते हुए हो गए, 50 साल में इसी तरह से ये चला है। सो आगे स्टील प्राइस हमारे कंट्रोल में रहेंगे ये तो मुझे कोई लगता नहीं है। बट इसीलिए हम क्या है, हमारा जैसे मैंने आपको सेगमेंट वाइज बताया हमारा वॉल्यूम, सो 75% प्लस 80% के आसपास हमारा बिजनेस फिक्स रहता है। तो कभी घटता है कभी बढ़ता है, मतलब ओवरऑल साल भर में जाके उसका एवरेज में बहुत ज़्यादा उसका कोई नेगेटिव खास इम्पैक्ट नहीं आता इन केस ऑफ सूर्य रोशनी। सो हम ये ट्राई करते हैं, क्योंकि हम तो 24 घंटे हमारा काम ही है पाइप बेचना। जैसे ऐसे इन्वेस्टर जो है आपका रोल रहता है कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से कमाई कर ले, तो हमारे लिए तो कमाई करने का साधन ही स्टील है। तो 24 घंटे हम यही सोचते हैं, तो मतलब मार्केट जैसा रहता है उस हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड भी कर लेते हैं। ओके। एंड सर दूसरा चीज़ मैं ये पूछ रहा था कि गोइंग फॉरवर्ड आपका जो नेक्स्ट जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है अभी, सेम हम लोग जो अभी फ्यूचर आउटलुक में नेक्स्ट 5 साल का अपना विजन क्या है? आप जैसे बोल रहे थे कि करंट ईयर में आप ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो और वॉल्यूम ग्रोथ और ये सब आपको ऑन ग्राउंड पे दिख रहा है, तो नेक्स्ट 5 साल का हॉराइजन कैसा है? आपको 10-15% CAGR के हिसाब से आप ग्रो करना चाह रहे हो कि आप उसको एक्सेलरेट करके 20-25% CAGR में ग्रो करोगे ताकि आप मार्केट शेयर गेन कर पाओगे दूसरे कॉम्पिटिटर्स से? और एक और चीज़ उसमें यह है कि जैसे APL अपोलो है, वो उसका जो बेस कमोडिटी स्टील पाइप का जो है वो उसको डी ग्रोथ कर रहा है और वो फोकस कर रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में। तो क्या ये अपने लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि हम उधर से भी एक मार्केट शेयर गेन कर सके और हमारा EBITDA का जो स्प्रेड है वो थोड़ा बढ़ा पाए जनरल सेक्शन में भी? देखिए, फोकस हमारा सेक्शन में भी है, इसीलिए अभी जो भी एक्सपेंशन चल रहा है तीनों प्लांट में वो फुल्ली जो है DFT पे है और सेक्शन पे है, नंबर 1। और नंबर 2 मतलब अगले 5 साल में 15 से 18% का CAGR हमको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट भी काफ़ी पुश होगा, तो उसको भी कंट्रोल रखने के लिए सो वो ऑलरेडी उस रोड में पे हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है सूर्य रोशनी के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ करने के लिए, और उसको हम इनकेश करने के लिए
कुछ एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में भी ऑलरेडी हम आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक शायद मतलब वो क्लैरिटी आ जाएगी, तो आपको भी हम बताएंगे। थोड़ा हमारा रीजनल प्रेजेंस और मजबूत करने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर ये 15-20% CAGR जो आप बोल रहे हो वो लाइटिंग भी। Sorry to interrupt, Mr. Raj. May I please request you to rejoin the queue as there are several participants waiting for their turn. Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in the conference, please limit your questions to only one per participant. Should you have follow-up questions, we request you to rejoin the queue. I repeat, please limit yourself to only one question per participant. Should you have a follow-up question, we request you to rejoin the queue. We have our next question from the line of Saket Kapoor from Kapoor Co. Please go ahead. जी साहब, नमस्कार साहब। सभी विस्तृत जानकारी के लिए सर मैं अपने दोनों ही प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ। एक तो सर जो आप वॉल्यूम एडिशन कर रहे हैं पाइप सेगमेंट में फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 14 to 16 के लिए, उसमें हमें कैपेक्स कितना करना है? और सर जो आपने एबिटा का एक जो गाइडलाइन बताई है उसमें हमारा लाइटिंग बिजनेस एंड पाइप बिजनेस का क्या मिक्स रहेगा? पूरे वित्तीय वर्ष के हिसाब से ही बता सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में कितना था? ये दोनों जानकारी। नहीं, आप जहाँ तक आपने कैपेसिटी का बताया करीब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसमें जी। और इंटरनल एक्रूवल से ही कर रहे हैं। और जो आपने बताया लाइटिंग स्टील का, तो लाइटिंग के अंदर में देखिए पूरे साल भर में हम लोग 2200 करोड़ का टर्नओवर जो मैंने पहले भी कॉल में बताया था उसी पे हमने अपने नंबर्स को मेंटेन करके रखा है। और 20 से 22% की ग्रोथ रहेगी। पिछले साल 1809 करोड़ की सेल थी, इस बार 2200 करोड़ की सेल होगी। और करीब 200 करोड़ का जो है EBITDA लाइटिंग डिवीज़न के अंदर में हम लोग करेंगे। और जहाँ तक स्टील डिवीज़न का है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और कंपनी एज ए होल जो है पूरे साल भर में जो नंबर्स हमने पहले आपको बताए थे उसी नंबर पे हम अपने आप को स्टिक रखे हुए हैं। करीब 9400 से 9500 करोड़ का जो है टोटल जो है रेवेन्यू रहेगा और 670 से 680 करोड़ के आसपास का EBITDA कंपनी एज ए होल सूर्य रोशनी का रहेगा। जी सर, सभी जानकारी के धन्यवाद सर। लाइटिंग बिजनेस में आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस्टर साकेत, मे प्लीज रिक्वेस्ट यू टू रिजॉइन द क्यू। आप ये पॉइंट बस क्लियर कर दीजिए जी, बताइए ना सर। बस यही पूछा था कि लाइटिंग बिजनेस में हमारा कितना परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होता है और कितना इन हाउस का एज अ परसेंटेज? देखिए ज़्यादा हम हमारी स्पेशलिटी जिसमें है स्पेशलिटी वो हम खुद ही इनाउंस करते हैं। और कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर में इनाउंस करके घाटा है, सो ये तो मेक और बाय हम लोग इंटरनली देख करके करीब 20% के आसपास हमारा जो है आउटसोर्स रहता है, 80% हमारा इनाउंस रहता है। बहुत धन्यवाद। बट जो आउटसोर्स भी है उसको भी हम ही कंट्रोल करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के प्रोडक्शन में हमारे ही लाइन पे लोग रहते हैं। और वो ज़्यादातर 80% जो भी बाहर से मटेरियल आता है वो भी एक्सक्लूसिव सूर्य रोशनी के लिए ही बनाते हैं। सो बेसिकली दे आर ऑल्सो आवर एक्सटेंडेड प्लांट। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, we'll take that as the last question for the day. I now hand the conference over to Mr. B.B. Singhal for closing comments. Thank you, and over to you, sir. Thank you everyone for joining us today on this earnings call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thank our MD sir and the CEO for sparing their valuable time and addressing queries raised by participants who attended the call. For any further queries, if any, you can contact SGA, our investor relation and advisor. Thank you. Good evening to once again. Thank you. Thank you. On behalf of Surya Roshni Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.